हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सनिया और जो केसेस मैं आज प्रेजेंट करने लगी हूँ ये हैं सोराइसिस विद सोराइटिक आर्थराइटिस। सो बेसिकली सोराइसिस एंड सोराइटिक आर्थराइटिस इज़ वन ऑफ द डिसऑर्डर जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। सो आई हैव प्रेजेंटेड 2 केसेस ऑफ माइन जिनका बेसिकली इशू यही था कि सोराइसिस की वजह से दे हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग एवरीवन इन देयर सोसाइटी, दे हैव स्टार्टेड डिटीरियोरेटिंग इन देयर सोसाइटी बिकॉज ऑफ देयर सोशल इंटरेक्शंस, और इसी वजह से वो लोग अपनी फैमिलीज़ में भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहना शुरू हो गए थे। सो दिस इज़ माय फर्स्ट केस जो एक मेल पेशेंट का है। इनका बेसिकली जो इशू था, ही वाज हैविंग प्लाक सोराइसिस विद जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, जो कि इनके सेकंड बिग टो की इन्वॉल्वमेंट थी। एज ही वाज वर्किंग एज वेल और एक अच्छे बिजनेसमैन थे, because of psoriatic arthritis his quality of work was deteriorating too. So he presented to me after aggressive exposure of psoriasis and psoriatic arthritis, and I discussed with him few options and we started with conventional therapies like methotrexate. उनको सिर्फ ये इशू था because whenever he used to take methotrexate he started having GI upset like nausea, vomiting, और वो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता था। And every time whenever he used to take methotrexate, before taking that medicine he started having phobias of nausea and vomiting. So यहाँ पे ना सिर्फ सोराइसिस, सोराइटिक आर्थराइटिस, बल्कि कन्वेंशनल थेरेपी के इनटेक से भी उनको इश्यूज आना शुरू हो गए थे। देन आई डिस्कस्ड अबाउट फ्राइजरॉन सिकुकिनुमैब विद हिम and we started with the dose of secukinumab, and as you all know that इसकी loading dose दी जाती है initially for first 5 weeks, and you won't believe that after giving first dose of secukinumab Frizeron his joint pain was completely gone. Trust me, it was completely gone, and for the same reason जो इनका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जिस चीज़ का आ रहा था कि जिससे ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, ही फेल्ट सडन रिलीफ इन हिज सोराइटिक आर्थराइटिस, और उसकी जो पेन थी जो जिसकी वजह से ही वाज अनेबल टू कैरी ऑन हिज चोर्स, हिज बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड ऑल दैट, इसकी फर्स्ट डोज लेने के बाद ही स्टार्टेड गेटिंग इम्प्रूवमेंट इन हिज जॉइंट्स. So if we'll talk about on his skin issues, so definitely after taking few doses his PASI started improving, his DLQI started improving, and alhamdulillah after certain doses his everything was cleared, his joint deformity was cleared, and now he's happy and living his life and doing his work very happily. So all the preliminary work was done as we all do for the biologicals like secukinumab. So this is my basically motto is being third world country, most important is patients की compliance क्यों disturb होती है because of their financial issues. So secukinumab नो डाउट इट्स वन ऑफ द वंडरफुल ड्रग, बट थोड़ा सा इसका ये है कि फाइनेंसिस का इशू आता है जिसमें मैंने अपनी डोज को मॉडिफाई किया एंड इट्स अ मॉडिफाइड रिजीम बेसिकली. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग 2 doses आई हैव गिवन हिम सिंगल डोज ऑन वीकली बेसिस, एंड देन आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग द टाइम ड्यूरेशन, एंड टिल नाउ all of my patients are having good time duration of interval gaps, and they are all fine without any recurrence or without any joint deformity. So this is the basic my regime. Again, like I have given initial weekly dose and then I switched them to the monthly, and then I started increasing the gap period. And here you can see now they are on almost 4 months doses, and they are doing perfectly fine. So this is the score which we have done at the first dose, baseline, 5th dose, 10th dose, and 12th dose, and you can see how a dramatic improvement we can see after at the baseline and at the 12th dose. That patient is completely recovered and he's doing perfectly fine. Next please. So these are before and afters. Patient had very aggressive patches of psoriasis and psoriatic plaques on their face, bodies, and you can see it's completely gone. His beard is clear, his face, his scalp, his body,
This is the body picture, back picture, and this is joint. And if you can appreciate, this is all swollen and very painful. Patient used to take lots of painkillers, and trust me, the agony, the pain which keeps patient in that state is very miserable for the patient. And if you have sympathies for your patient, then obviously it will affect you as well. And here you can see these are the before and these are afters. So as I have already told you, that marked improvement was noted even after first doses for the joints, and after giving few loading doses I have seen dramatic improvement in their plaque psoriasis as well. And here is another case. Previous one was a male case and this is the female case. Again, she started avoiding her family, her children, was being so much in depression that she was unable to do anything related to her household work or any socializing activities. She was, when she presented to me, her whole body was covered with psoriasis, her ring finger joint was involved, and she started leaving everything, like everything in a sense that she stopped caring for her own self. She said, I'm not going to wear any jewelry, I'm not going to wear any good clothes because now I cannot live like a normal life. After taking few doses, you can see how a dramatic improvement we have seen in this case as well. In this case, I have discussed other conventional therapies like acitretin, but as we all know that due to reproductive age, we have some limitations. So acitretin was not the option for this age group because she wanted to conceive for more kids. So acitretin couldn't be started. Methotrexate gave her GI upset and that was very aggressive. So we started with secukinumab. And this is my, again, dose regimen for secukinumab. Again, loading dose and started increasing the time duration between the dosage interval. And here you can see, again, this patient is on almost 4 months and completely symptomless, signsless. And again, you can see how dramatic improvement we have seen in PASI as well as DLQI and body surface area clearance. So this is before and this is after 10th dose. Next, again before and after day 1 and 10th dose. So the conclusion, if I conclude my talk here, I would say that secukinumab has got a few excellent perks, that it has got no side effect. It gives quick and sudden improvement in their joint pain if the patient is suffering from psoriatic arthritis, and if the patient is having aggressive plaque psoriasis, you can still see visible improvement within the loading dose phase. It gives your patient comfort, relief from the pain, release their agony, and give them a better life and better outcome for their society and for their own self. So I hope this talk will be helpful for you, and stay happy, stay healthy, and be nice to everyone. Bye-bye. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आज हम मौजूद हैं यहाँ पे 41st पैटकॉन डर्मेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस पे। नोवार्टिस की तरफ से हम यहाँ आए हैं और फ्रेजरॉन इंजेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेजरॉन क्या है, क्यों है, इसके ऊपर हमारे साथ आज जो है डिस्कस करेंगी डॉक्टर सानिया जावेद, जो कि डायरेक्टर हैं रोजमेटिक क्लिनिक की। वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही डायनामिक किस्म की डॉक्टर हैं, जो हमेशा कोशिश करती हैं कि अपने पेशेंट के साथ सिंपथाइज करें, एम्पथाइज करें और उसको बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो फराहम करें। आपने केस स्टडी देखी, एक पहली जो केस स्टडी थी वो एक बिजनेसमैन की थी और उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि देखिए वो किस तरह से नॉट ओनली द स्किन सोराइसिस दैट वाज डिसफिगरिंग हिम वाज हिज प्रॉब्लम, बट आल्सो ही हैड एक्चुअल डिसेबिलिटी एंड पेन इन हिज लेग्स बिकॉज ही हैड सोराइटिक आर्थराइटिस। तो सबसे पहले तो सानिया उनके ऊपर बात करते हैं कि आई एम श्योर उनके लिए कितना मुश्किल था। आपने कहा कि उन्होंने अपना इतना अच्छा काम छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ही कुडंट वर्क बिकॉज ऑफ नॉट जस्ट द डिसफिगरमेंट एंड फीलिंग लो सेल्फ एस्टीम, because of the pain. तो थोड़ा सा ये psoriatic arthritis के ऊपर बात कीजिए कि how was this better than the other conventional medicines that we've been using in the past? अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे आपने एड्रेस की है, बेसिकली जब कि कोई भी बंदा जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा उठता बैठता और उसकी स्किन के ऊपर सडनली एरप्शंस आना शुरू हो जाएं, उसके जॉइंट में डिफॉर्मिटीज शुरू हो जाएं या पेन स्टार्ट हो जाए, लोग आपसे सवाल करते हैं ये तुम्हें क्या हो गया या वो तुम्हें क्या हो गया, ये इसको दिखाओ उसको दिखाओ।
इन चीज़ों से बहुत से लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं और मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और सोराइसिस इज़ वन ऑफ द डिजीज़ जो स्ट्रेस से एग्रेवेट होती है। सो इसमें बेसिकली हमें क्लाइंट का, अपने पेशेंट का सिर्फ अपना डिजीज़ को नहीं करेक्शन देनी होती, हमें उनका स्ट्रेस लेवल भी मैनेज करना होता है। और जब आप सोसाइटी से इस तरह की बातें सुनते हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल बूस्ट करता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से सोराइसिस भी एग्रेवेट होता है। तो सोराइटिक आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो उसमें सिकोकिनुमैब का जो फ्राइजरॉन का जो रोल है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, कन्वेंशनल थेरेपी से क्यों ये डिफरेंट है, बिकॉज कन्वेंशनल थेरेपीज़ के कहीं ना कुछ साइड इफेक्ट ज़रूर होते हैं। मीथोट्रेक्सेट से हम सारे वाकिफ़ हैं। मीथोट्रेक्सेट का सबसे बड़ा नुकसान ये है, जितनी डोज आप लेते हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर रहती है और ये आपको बहुत से साइड इफेक्ट्स देती है। What about डिप्रेशन? जब हम मीथोट्रेक्सेट की बात करते हैं तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन होता है। So not just depression due to the psoriasis itself, but and due to low self-esteem due to the looks, but due to the drug itself. So how was your experience while using this drug on depression? डिप्रेशन फॉर सोराइसिस, सॉरी, मीथोट्रेक्सेट फॉर डिप्रेशन। अच्छा, मीथोट्रेक्सेट अगर हमने जब भी दी है पेशेंट्स को तो मोस्टली पेशेंट्स में जो मैंने नोट किया है, बिकॉज इट्स अ वीकली डोज, जैसे जैसे उनका वो टाइम करीब आता है वीकली डोज का, उनके दिमाग में एक चीज़ आना शुरू हो जाती है, द मोमेंट आई एम गोना टेक दिस ड्रग, मुझे नॉजिया, वॉमिटिंग, मेरे से 2 दिन काम नहीं किया जाएगा, चक्कर आते रहेंगे। दे ऑल हैव सिमिलर कंप्लेंट्स। बट सिकोकिनुमैब को मैं क्यों प्रायोरिटी देती हूँ इस चीज़ में, क्योंकि सिकोकिनुमैब के रिजल्ट्स में जब भी मैंने पेशेंट को बेस लाइन पे देखा है, उनकी इन्वेस्टिगेशंस हम रिपीटेडली करवाते रहते हैं। आई हैव नेवर सीन नॉट इवन अ सिंगल पेशेंट जिसके अंदर कोई साइड इफेक्ट रिपोर्टेड हो या पेशेंट को मेडिसिन या इंजेक्टेबल के बाद कोई आफ्टर इफेक्ट्स फेस करने पड़े हों। तो आपने जब कहा कि ये जो पेशेंट था इनकी बाकायदा स्वेलिंग थी टोज के ऊपर, राइट, एंड दैट एक्चुअली सबसाइडेड, सो हाउ वुड यू यूज दिस ड्रग फॉर समबडी हु परहैप्स डज नॉट हैव एज एविडेंट ऑन psoriasis on the skin but more of an arthritic problem with psoriasis? So उनके अंदर how is it better than the DMARDs they were using before? DMRDs नो डाउट अच्छे ड्रग्स हैं, बट दे आर कन्वेंशनल थेरेपीज नाउ। अब हम लोगों ने जब भी सोराइटिक आर्थराइटिस को डील करना है, वो ऑलवेज रूल आउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस और उसके अकॉर्डिंगली हम इनको लेके चलते हैं। सो अगर आपने देखा मेरी प्रेजेंटेशन में हमने आर फैक्टर रूल आउट किया है कि आर फैक्टर नेगेटिव है, देन वी हैव प्रोसीडेड फॉर सोराइटिक आर्थराइटिस, बिकॉज सोराइटिक आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए डीमार्ड्स किए जा सकते हैं यूज़, बट सोराइटिक आर्थराइटिस में डीमार्ड्स को देने का पर्पज समझ नहीं आता, बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स और भी चीज़ों और भी इश्यूज हमें देते हैं। तो सिकोकिनुमैब इसलिए सुपीरियर है बिकॉज एक तो साइड इफेक्ट्स नहीं है, सेकेंडली जितने भी पेशेंट्स में सोराइटिक आर्थराइटिस में मैंने देखा है, आफ्टर गिविंग देम फर्स्ट डोज ऑफ सिकोकिनुमैब आई हैव सीन significant improvement in their joint pain. So, and is that the reason why they continue and keep coming and they're compliant about it? वरना तो देखिए यूजुअली क्या होता है कि सोराइटिक पेशेंट जो है जैसे वो ड्रग्स लेता है उसको फर्क नहीं लगता तो वो छोड़ देता है। तो आपके पेशेंट्स ने इसको रेगुलरली फॉलो किया एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सो आई वाज सीइंग कि आपने उसको किसी तरह से मॉडिफाई किया उसकी रेजिमेन को। सो हाउ डिड यू चेंज इट दैट इट बिकेम अफोर्डेबल फॉर देम? अच्छा, बीइंग थर्ड वर्ल्ड कंट्री आई ऑलवेज ट्राई कि हमारे पेशेंट्स को वो चीज़ें मुहैया की जा सकें जो उनके लिए बजट फ्रेंडली भी हों और उनकी जो डिजीज़ है उसको भी वो कंट्रोल रखें। सो सिकोकिनुमैब को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई इस तरह से किया है कि विद द टॉपिकल ब्लैंड इमोलिएंट्स आई हैव गिवन देम ओनली 150 मिलीग्राम सिकोकिनुमैब, जबकि लिटरेचर में इट्स 300 मिलीग्राम मीन्स 2 इंजेक्शंस, इट्स सबका लोडिंग डोज एंड देन हम उसको मंथली डोज पे लाइफ लॉन्ग यूज़ कराते हैं। व्हाट आई हैव डन, आई हैव पिक्ड 150 milligram, like 1 injection, weekly dose as the loading dose, and then I switch them to the monthly dose. And the moment they have started improving their skin condition, joint condition, I have started increasing their time duration. Like from 1 month, I switched them to 2 months and then 3, and then now patients see me after 4 months. So if patient is spending approximately, if I convert it into dollars, like $450-400 के window बनता है 2 injections का. So अगर उनको half of the price में इन अ मंथ या 2 months या 3 months के अंदर उनको ये डोज लेनी पड़ रही है तो उनका कंप्लाइंस इसलिए अच्छा रहता है बिकॉज इट हैज़ मेड इट बजट फ्रेंडली बाय डूइंग दिस, एंड यू आर कीपिंग योर पेशेंट सिम्टम फ्री, यू आर कीपिंग देयर जॉइंट्स इंटैक्ट। और इसमें उनके जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट में मैं एक चीज़ यहाँ पे एड्रेस करूँगी, जैसे ही कोई भी पेशेंट देखे कि सोराइसिस में उसके जॉइंट इन्वॉल्वमेंट आना शुरू हो गई है, द मोमेंट यू नोटिस एनी चेंज इन देयर जॉइंट,
immediately start secukinumab, because अगर आपके joint की deformity आ गई, it won't go back. तो what is the reason for this delay? क्यों डॉक्टर्स डिले करते रहते हैं, बायोलॉजिक्स पे नहीं डालते पेशेंट्स को और वेट करते रहते हैं, सिर्फ टॉपिकल ट्रीटमेंट्स देते हैं या स्टेरॉइड्स दे देंगे या मीथोट्रेक्सेट तक ही रहते हैं? वो क्यों, why are they so scared of prescribing this medicine? Maybe because it's new in town. अब तो new नहीं है, but still it's new in town. बहुत से लोगों का exposure नहीं होता, knowledge नहीं होता, इसलिए what I always try कि अपने knowledge को I keep upgrading, updating every few months. I go for conferences, I go for lectures, I go for trainings, ताकि हमें नई चीज़ें पता चलें और हम पिछली चीज़ से बेहतर एक अगली चीज़ लेके आ सकें। बिल्कुल, आपने एक और की स्टडी भी मेंशन की जिसमें एक लड़की है, एंड द वेरी गुड पॉइंट दैट यू मेंशनड ओवर देयर इज यू डिड नॉट गिव हर एक्रिटिन बिकॉज शी वाज इन द रिप्रोडक्टिव एज, whereas a lot of unfortunately dermatologists are prescribing that for a lot of other reasons as well. So what would you say about this part of it, कि how does Frazeron prove to be a good substitute for that? विद फ्राइजरॉन हमें कोई प्रेगनेंसी की कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, हमें ये इशू नहीं है कि बेबी में कोई डिफॉर्मिटी आ सकती है, इवन इफ द पेशेंट हैज़ कंसीव्ड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. While other conventional therapies, if we talk about methotrexate or retinoids, इसके अंदर we have to stop the medication for conception, otherwise patient during their treatment they cannot conceive. और बाज़ दफ़ा सोसाइटी के प्रेशर में आके फीमेल्स बहुत ज़्यादा इसे डिस्टर्ब हो जाती हैं, स्ट्रेस में चली जाती हैं कि हस्बैंड उनके कह रहे हैं कि आपको ये मेडिसिन स्टॉप करनी है, दे वांट अनदर चाइल्ड, और इसके साथ साथ उनका स्ट्रेस लेवल मज़ीद बढ़ता चला जाता है. सो आई फाउंड इट अगेन इन द फीमेल केसेस एज वेल कि उसमें मुझे ये प्रायोरिटी क्यों है इस ड्रग को, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि उसमें हमें कोई कंसेप्शन के लिए कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमारी एज सच नहीं है इस ड्रग से. चलिए जाते जाते one word for Frazeron from Dr. Sania herself, for the dermatologist as well as for the patient. It's a magical drug, it's a wonderful product. Do give it a try, because ये आपके लिए ही नहीं, आपके जो पेशेंट्स आपसे लिंक्ड हैं, ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है. जब आपका पेशेंट ठीक होगा तो डेफिनेटली आपको भी वो चीज़, एक उसका आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा. Thank you very much, Dr. Sania, for joining us. Thank you very much for watching. जबकि मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, पंजाब में खुश्क सर्दी बरकरार है. मैदानी इलाकों में स्मॉग, हल्की धुंध छाई रही. कराची में रात और सुबह के औकात में खुनकी बढ़ गई. महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली इलाका जात में आज मतला अबर आलूद रहेगा. पास मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है. मौसम सर्द होते ही मौसमी बीमारियां सर उठाने लगी हैं. नज़ला, जुकाम, गला खराब होना, दमा, जोड़ों में दर्द, हाथ पांव, खासतौर पर उंगलियां ठंडी होना और जिल्द खुश्क होना सर्द मौसम की आम बीमारियां हैं. इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर सेहत डॉक्टर सनिया जावेद. डॉक्टर सनिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया. ये बताइएगा कि जो नज़ला ज़ुकाम है सर्दियों में एक आम बीमारी है, क्या हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया. एक्चुअली जब भी वेदर चेंज होता है और जब भी सर्दियां आती हैं तो डेफिनेटली सांस की नाली के मसाइल, चाहे वो नाक हो, गला हो या फेफड़े हों, इनके मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ दिल के मसाइल भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आजकल एक स्मॉग का साथ दौर चल रहा है, तो सर्दियों के साथ जब स्मॉग की एक लहर आई हुई है, इसकी वजह से बहुत से लोगों में, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, सब में सांस के मसले और दिल के मसले बढ़ना शुरू हो गए हैं. तो इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है और एहतियात में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप अपने इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट को साफ़ रखने की जितनी कोशिश कर सकते हैं करें. एयर प्योरीफायर्स यूज़ किए जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन चूँकि हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी में ये चीज़ नहीं आती है, क्योंकि एयर प्योरीफायर्स थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो उसमें सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप कोशिश करें गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, किसी ऐसी जगह पे आप ना ट्रैवल करें जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, या जैसे बाज़ दफ़ा जब फसलों की कटाइयाँ हो रही होती हैं तो उसके बाद वो उसका रॉ मटेरियल जला दिया जाता है या लोग अपने वेस्ट को बर्न करते हैं, तो ये चीज़ें अवॉइड की जाएँ क्योंकि ये एनवायरनमेंट में मज़ीद पोल्यूशन कॉज करती हैं. और स्मॉग में ये सारे पार्टिकल्स अब एक हवा की लेयर में ठहर जाते हैं
और इस तरह की हवा में जब सांस लिया जाता है तो सारे सांस के मसाइल मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और डॉक्टर सरिया, ऐसे में जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं, सर्दियां उनके लिए ज़्यादा तकलीफ साबित होती हैं, उनके लिए क्या प्रिकॉशन सजेस्ट करेंगी आप? बिल्कुल ऐसा ही है, एस्थमा बहुत एग्रेवेट हो जाता है इसमें, इसके साथ ही साथ जल्दी मसाइल बढ़ जाते हैं, सांस के मसाइल, दिल के मसाइल बढ़ जाते हैं। तो एस्थमा वाले पेशेंट्स को मैं यहाँ पे लाजमी कहना चाहूँगी कि आप अपने साथ इन्हेलर लाजमी रखें, बग़ैर इन्हेलर के ट्रैवल मत करें, बग़ैर इन्हेलर के कहीं मूव ना करें, क्योंकि अल्लाह ना करे इस स्मॉग की वजह से और सर्दी की वजह से अगर आपको कोई एस्थमा का इशू बनता है तो आपके लिए एकदम से इन्हेलर अरेंज करना अगर मुश्किल हो जाता है तो ये ख़तरनाक सिचुएशन बन सकती है। अच्छा डॉक्टर सनिया, ये भी बताइएगा कि सर्दियों में बहुत से लोग जोड़ों की दर्द की और अकड़न की शिकायत करते हैं और उसकी वजह भी दर्जा हरारत कम होना बताया जाता है, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसा है कि क्योंकि जोड़ों के दर्द में जब सर्दी होती है तो थोड़ी सी हमारी खून की नालियाँ मज़ीद श्रिंक होती हैं जो जोड़ों के दर्द को मज़ीद बढ़ा देती हैं। तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप अपने इर्द गिर्द के टेम्परेचर को मेंटेन रखें, अपने इर्द गिर्द का दर्जा हरारत एक नॉर्मल रखें जो आपके लिए आपके जिस्म को ज़्यादा ठंड से बचाए। हार्ट अटैक के इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, जोड़ों के दर्द के इश्यूज़ बढ़ जाते हैं सर्दियों में, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने इर्द गिर्द का जो दर्जा हरारत है उसको बेहतर रखें, गर्म कपड़े पहने, गर्म मोज़े, गर्म दस्तानों का इस्तेमाल लाजमी करें, गर्म पीने वाली चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करें, चाय का कहवा हो गया, यखनी हो गई, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें। अच्छा डॉक्टर सनिया, गवर्नमेंट की जानिब से अक्सर सर्दियों में ये अपील की जाती है कि आप घरों में हीटर जलाने की जगह गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, तो घर के अंदर आपको गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए या हीटर इस्तेमाल करना चाहिए? ज़्यादा बेटर अप्रोच क्या है? बेहतर अप्रोच तो ये है कि आपके घर का टेम्परेचर बेहतर हो, आपके घर का दर्जा हरारत जो है वो वार्म हो, गर्म हो, जो आपकी बॉडी के हिसाब से एक आपके जिस्म का टेम्परेचर उसके हिसाब से मैच करे। बेहतर हल ये है क्योंकि लेकिन अब मैं ये यहाँ पे कहूँगी कि ज़ाहिर है हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता ये चीज़ें, तो फिर वो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल साथ बढ़ा दें। गर्म चीज़ों का जो गैस का और इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में थोड़ा सा इशू है और अब थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है, तो उसमें यह है कि इसलिए इन चीज़ों को कहा जाता है कि ज़रा एतदाल में रहते हुए अपने ये रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना चाहिए। और फिर जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं, इस तरह की चीज़ें, कोयले जलाते हैं, तो पोल्यूशन मज़ीद बढ़ती है, तो इस तरह से चीज़ें मज़ीद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं जो एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। अच्छा डॉक्टर सरिया, हमने शुरू में बात की गला ख़राब होने की, अक्सर लोग जो है डॉक्टर के पास जाए बगैर ही खुद ही सी एंटीबायोटिक्स अपने आप को प्रिस्क्राइब कर देते हैं और समझते हैं कि पिछली दफ़ा चूंकि मैं इसी एंटीबायोटिक से ठीक हो गया था तो इस दफ़ा भी मैं इसी एंटीबायोटिक से ठीक हो जाऊंगा और एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। इस हवाले से आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है कि एंटीबायोटिक्स बाज़ दफ़ा जैसे मुझ पे अगर एक एंटीबायोटिक असर की तो दूसरे को भी प्रिस्क्राइब कोई कर देता है। ये एक नेचुरल जो है एक नॉर्मल सी रूटीन है जो कि कतन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार तो एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी में उसके ख़िलाफ़ एक फ़ोर्स बन जाती है और फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें उसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आपको फ्लू या इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, आपका गला ख़राब है या आपको सांस की नाली का मसला बन रहा है, तो आपने सिंपल स्टीम अपनी रूटीन में शामिल कर लें। 2 से 3 बार दिन में स्टीम लें, उसके अंदर लौंग और नमक का इस्तेमाल करें और वो स्टीम आप लेते रहें और रेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसके साथ कहवे का इस्तेमाल करें जो आपको एक होम रेमेडीज़ के लिए ये तमाम चीज़ें बहुत बेहतर रखती हैं आपके सांस की नाली को, आपके गले को, आपके नॉस्ट्रिल्स या आपके साइनसेस को बहुत क्लियर रखती हैं। लेकिन अगर आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये नुकसान। डॉक्टर सनिया, लास्ट क्वेश्चन, अब तक की गुफ्तगू से हमने ये देखा कि सर्दियों में जो अमराज होते हैं अमूमी तौर पर लोगों में उनकी शिकायत बढ़ जाती हैं, लेकिन दुनिया में हिसाब उलट नहीं है कि जो सर्द ममालिक है वहाँ पर एवरेज लाइफ ज़्यादा है गर्म ममालिक की निस्बत? बिल्कुल ऐसा थोड़ा सा ये है कि हम लोग एक्चुअली हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं है। हमारा एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हम बहुत पोल्यूटेड जगह पे रहते हैं, तो जब हम एक पोल्यूशन वाली जगह पे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ स्पैन कम हो जाता है। अगर हम बाहर से कंपेयर करें ये चीज़ें तो बाहर के ममालिक में पोल्यूशन की शरह बहुत कम है, वहाँ पे जब पोल्यूशन नहीं है तो इसीलिए वहाँ पे लाइफ स्पैन भी बेहतर है और ग़िज़ा खालिस है, चीज़ें खालिस हैं, आपका लाइफस्टाइल टोटल ही बहुत खालिस रूटीन पे चल रहा होता है, तो उसकी वजह से
लाइफ स्पैन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है और ये इम्प्रूव हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे थोड़ा सा हालात ये हैं कि हम इस चीज़ों में लैक करते हैं, तो इस वजह से हमें इश्यूज़ भी ज़्यादा इसको फेस करने पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सनिया, आपने आज हमें स्टूडियोज़ में वक्त दिया। उनका ये कहना था कि किसी भी किस्म की दवा को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। पॉलिटिक्स की बात कर ली, स्पोर्ट्स की बात कर ली, अब हम स्किन गाड़ियों की की बात भी करेंगे। बात हाँ, गाड़ियों की भी। अब हम स्किन की बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है, बदल रहा है मौसम, ऐसे मौसम के अंदर बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं एंटी एजिंग को लेकर, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उसको आज हम क्लियर करेंगे। और फिर एक जो ब्राइट स्किन है, हेल्दी स्किन है, और एक जो गोरा होना है, ये वाला भी एक मामला है। सो आज हमने इन मिथ्स को डिस्कस करना है कि ब्राइटनिंग और जो अच्छा ग्लो है आपकी स्किन के लिए वो कितना जरूरी है। 15 मिनट में कैसे आप गोरे हो सकते हैं? डॉक्टर सानिया हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट है। वेलकम आप डॉक्टर सानिया। का शुक्र, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर सानिया, ये नॉर्मली जो स्किन के हवाले से बड़ी मिथ्स होती हैं, टाइम के साथ साथ आपकी एज, ऑब्वियसली स्किन भी एज करती है, आप जब खुद एज करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते और हम कुछ अजीबोगरीब टोटके आजमाते रहते हैं। सो ये जो एंटी एजिंग का मामला है, इस हवाले से जरा कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करें हमारे देखने वाले। अच्छा, एजिंग बेसिकली प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी में से नेचुरली कोलेजन, इलास्टिन, हाइलुरोनिक एसिड, ये वो कंपाउंड्स हैं जो एंटी एजिंग काम करते हैं। जब हम 20 इयर्स के होते हैं, हर साल हमारी बॉडी से 1% कोलेजन कम हो जाता है। अब जब कोलेजन कम होगा तो स्किन पे लूज स्किन होना शुरू हो जाएगी, पोर्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे, झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाएंगी। ना सिर्फ ये एक्सटर्नली है बल्कि इंटरनली भी बंदे में एंटी एजिंग चीजें एजिंग चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। सो इसका बेहतरीन हल ये है कि एक तो नेचुरल कोलेजन इंडक्शन की चीजें आप अपनी रूटीन में रखें, जैसे बॉडी को डिटॉक्स करना विद द हेल्प ऑफ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स, जैसे फ्रूट्स जूसेस हैं, चाय है, कॉफी है, ग्रीन टी है, वॉक है, एक्सरसाइज है। पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें, तमाम चीजें आपको डिटॉक्स करती हैं जो अल्टीमेटली एंटी एजिंग का काम करती हैं। ठीक है। लेकिन एक मिसकंसेप्शन है कि लोग एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स को प्रेफर नहीं करते। दे वेट कि हमें जब 40-50 साल के बाद जाके जब हमारे चेहरे पे झुर्रियां बहुत ज्यादा पड़ जाएं तब जाके लोग कहते हैं। अब तो खैर थोड़ी अवेयरनेस आ गई है मीडिया की वजह से, अदरवाइज पहले ये होता था कि काफी लेट लोग अप्रोच करते थे। तो इसमें ये सबसे पहले मैं यहाँ पे कहूंगी, हर बंदे के लिए जरूरी नहीं है कि वो 20 साल पे ही जाके अपनी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे। दे कैन स्टार्ट जब उनको लगे कि मेरे एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे बोटॉक्स एक बड़ा कॉमन ट्रीटमेंट है। 20 साल के होते ही थोड़ी बहुत चीजें आप अपनी रूटीन में, स्किन केयर में ऐड करना शुरू कर दें ताकि आपको लेटर लाइफ में ज्यादा प्रोसीजर्स, ज्यादा चीजें इस्तेमाल ना करनी पड़े। अच्छा डॉक्टर सानिया, नॉर्मली लोग वक्त से पहले कुछ बहुत ज्यादा भी ट्रीटमेंट्स करा लेते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा नुकसान होता है। समटाइम्स हम जरूरी चीजें छोड़ के तो हम अपनी जो फीचर्स हैं उनको एनहांस करने पे लग जाते हैं, लेकिन पीपल रियली डोंट नो कि इसको टाइम के साथ साथ वो जो आप डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। तो नॉर्मली पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। सो हाउ डू यू सजेस्ट? मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ अपने फीचर्स को नेचुरली बेहतर करें, चेंज ना कराएं। क्योंकि जब आप चेंज करवाएंगे, एक स्ट्रक्चर आप चेंज कराएंगे फेस का, जैसे फिलर्स से लोग करते हैं, डॉक्टर्स हम लोग करते हैं, जिन लोगों की डिमांड होती है, बट मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि लोग ऐसा ना करें। क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर चेंज कराएंगे तो कुछ ना कुछ नेचुरल तौर पे आपके डैमेज आना शुरू हो जाता है और ज्यादा करना पड़ता है। यस, लेकिन अगर आप नेचुरल वेज में रहते हुए करें, एक लिमिट में रहते हुए करें, तो फिर इसका साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ अंडर आई लाइंस होती हैं, फाइन लाइंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिलर्स के साथ लोग ठीक कराते हैं। डू यू रियली सजेस्ट कि ये इस तरह होनी चाहिए, या स्किन के रूटीन आप कितनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उससे इसको केटर करें? बिल्कुल, मैंने जैसे शुरू में कहा कि एजिंग प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो उसके अंदर हमें एक चीज ये करनी होती है कि हम उस चीज को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दें। स्लो डाउन कैसे कर सकते हैं? हम कोलेजन लिक्विड ड्रिंक्स ले सकते हैं अपनी रूटीन में, अपनी डाइट को हेल्दी कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कर सकते हैं। अंडर एरिया की अगर आप बात कर रही हैं तो अंडर एरिया के ऊपर एक फैट का पॉकेट होता है जो टाइम के साथ साथ खत्म हो जाता है। सो इसके दो तरीके बेहतरीन होते हैं। एक तो ये कि आपकी नेचुरल फैट बॉडी से लेके फैट ग्राफ्ट कर दी जाती है, दूसरा तरीका फिलर्स का है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं फिलर्स का थोड़ा क्लियर करती चलूं, क्योंकि मुझे कई लोगों के फिलर्स ठीक करने पड़ते हैं जो ओवर फिलिंग करके खराब हो गए होते हैं। लोग ये चीज इसलिए कराते हैं कि कई लोगों को डार्क सर्कल, फाइन लाइंस का इशू आ रहा होता है, तो जब वो फिलर कराते हैं इंप्रूवमेंट की बजाय और खराब हो जाता है। सो ये ओवर फिलिंग का साइन है, मैल प्रैक्टिस का साइन है। ये चीजें वो हैं जो गलत तरीके से की जा रही हैं, जो डैमेज देती हैं। तो इसके अंदर हमेशा मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि एक नेचुरल वे में रहते हुए जब आप करेक्ट कराएंगे, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। अच्छा, ये जो आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, मुख्तलिफ लोग हैं स्किन केयर
का काम करने वाले, इनको कैसे हम इनकी क्वालिटी कैसे हम एनालाइज करें? आई मीन इफ आई एम गोइंग टू समवन, जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग खराब करा के आ जाते हैं, ये कुछ लोग नहीं, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, खराबियों की तादाद हमने बहुत देखी, तो हाउ टू एनालाइज? आई मीन क्या वर्ड ऑफ माउथ सुन के ही, जैसे कि लोग जानते हैं, या बड़े बड़े इश्तहार देख के जाएं, या कैसे करें? हाउ टू? एक डॉक्टर अगर अच्छा काम कर रहा है अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ, जिसकी भी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी वो कभी भी गलत काम नहीं करता, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी हैं चीजें। अब एक्चुअली ट्रेंड एस्थेटिक्स का इतना ज्यादा आगे कि मिसकंसेप्शन और मेल प्रैक्टिस बहुत बढ़ गई है, और एड्स देखे मशीन्स रख के बैठे हुए हैं, वो आपके एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये मेडिकेटेड चूंकि ट्रीटमेंट्स हैं, ये सैलून्स के नहीं है। आपको अगर चेक करना है, आप डॉक्टर की क्वालिफिकेशन चेक करें, वो कितना क्वालिफाइड है, उसका नंबर ऑफ पेशेंट्स कितना है, उसकी डिग्रीज क्या है, वो क्या कर रहा है, और उसको एक्सपीरियंस कितना है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से हम लोगों ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ अब एक अपना ट्रेनिंग वर्कशॉप स्टार्ट की है इन्हीं चीज़ों के लिए कि हम अच्छी चीज़ प्रोड्यूस कर सकें। बिकॉज हर जगह के ऊपर डॉक्टर्स को सिखाया जा रहा है, कई तो उनमें से डॉक्टर्स भी नहीं है, एंड दे आर परफॉर्मिंग सच प्रोसीजर्स। तो इस तरह की चीजों के अंदर हमें थोड़ा सा केयरफुल चलना चाहिए। इंटरनेट के ऊपर हर चीज अवेलेबल होती है। वेरी कॉमन क्वेश्चन, बट मैं हर जो आप की तरह के लोग जो जिल्द के अमराज को देखते हैं या फिर ब्यूटी एंड स्किन केयर को देखते हैं, मैं पूछता हूँ, ये जो ब्यूटी क्रीम्स होती है, राइट, आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, इसके पूछने का भी एक मकसद है, बिकॉज जब भी आप थोड़े ऐसे इलाकों में चले जाए ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेल ऑफ लोग नहीं रहते, वहाँ पे इनकी सेल बहुत ज्यादा है, इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा खवातीन करती हैं। क्रीमों का मिक्सचर लगाइए और गोरे हो जाए। हाँ, मोहल्लों के अंदर, और ऑब्वियसली ज्यादा तादाद वही है। आई मीन ये तो बहुत कम लोग हैं ना जो महंगे ट्रीटमेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। व्हाट अबाउट दैट? उनके बारे में क्या कहेंगी आप, और उनको क्या कहेंगी आप? उनको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वाइटनिंग या स्किन लाइटनिंग की तरफ कभी ना जाएं, एक नेचुरल ग्लो की तरफ जाएं। अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को नेचुरल चीजों से डिटॉक्स करें ताकि आपकी बॉडी नेचुरल ग्लो इमिट करे। आप अगर अच्छा खाएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर नजर आएगा। अच्छा प्रोफेसर, ये जो ग्लो वाली, नेचुरल ग्लो वाली बात है, इसको मजीद एलैबोरेट कीजिएगा। नॉर्मली स्किन ब्राइटनिंग और नेचुरल ग्लो और हेल्दी स्किन में बड़ा फर्क होता है कि आपने एक स्किन को गोरा करना है और एक आपका हेल्दी ग्लो आए, आपकी स्किन अच्छी लगे। इसमें जरा डिफरेंस समझाएं, और इसको अचीव करना कितना आसान है ये भी बताएं। जो ब्राइटनिंग बेसिकली, इसको हम वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग जो भी कह लें, इसके अंदर बेसिकली मेलानिन की प्रोडक्शन को जब हम कम करते हैं तो कलर टोन लाइटर होना शुरू हो जाता है। ये नुकसानदेह भी हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा, जैसे बहुत से लोग क्रेजी हो जाते हैं कि मुझे बहुत फेयर होना है, फिर मुझे उनको समझाना पड़ता है कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इस तरीके की चीज पे आप मत जाएं। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत से लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हुए मेरी उस रिजीम को, मेरी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हैं। और जो नेचुरल ग्लो की अगर हम बात करें तो ये वो चीज़ है जो एक आपकी बॉडी में जब कोई भी टॉक्सिन्स बन रहे होंगे तो आपका कलर टोन डल होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा हेपेटाइटिस के पेशेंट या कैंसर के पेशेंट्स के कलर डल हो जाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में जहरीला मादा बहुत ज्यादा बन रहा होता है। जब अपनी बॉडी को आप डिटॉक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों से जो मैंने शुरू में बोली, तो नेचुरल तौर पर आपका कलर टोन लाइटर होगा जो विद इन नॉर्मल रेंज होगा और जो आपके लिए सेफ होगा। एक मेल्स के हवाले से भी उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हुए कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो फर्क है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम फर्क है, उनकी बॉडी की एक्टिविटी फर्क है, उनका एक्सपोजर फर्क है स्किन का, वो खवातीन का वो नहीं है। तो क्या इश्यूज सेम है मेल और फीमेल स्किन के, या इश्यूज भी फर्क हैं और उनका सोल्यूशन? इश्यूज अब मोर और लेस सेम है, बिकॉज मेल में भी फेयरनेस की तरफ जाने के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ज्यादा होते चले जा रहे हैं। क्रीम्स के साथ, साइड इफेक्ट्स के साथ लोग बहुत ज्यादा आते हैं। मेल फीमेल रेशो ऑलमोस्ट सेम हो चुकी है। तो इसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी नेचुरल डाइट और ये तमाम चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ साथ मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक का इस्तेमाल रखें आप अपनी रूटीन में, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्शन देती हैं। जो भी बेहतरी आपकी आ रही है उसको प्रोटेक्ट रखेंगी, स्किन मॉइस्चराइज्ड होगी तो आपकी स्किन नेचुरली ही रिपेयर होती रहेगी। Is it about summers as well? गर्मियों में यस डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप नोट करें विंटर्स में लोग धूप में ज्यादा बैठते हैं और जैसे एक मजाक भी लोग करते हैं कि कीनो खा रहे हैं धूप में बैठ के, तो ये चीजें आपका कलर और डल कर देती हैं। तो जब भी आपका लाइट का एक्सपोजर होगा, धूप का एक्सपोजर होगा, तो ये चीजें हीट से आपको डैमेज करेंगी। जो आपने खुद बोला कि समर्स में होता है कि जी पसीना आ रहा है, गर्मी है, तो मॉइस्चराइज क्यों करना है? नॉर्मली पीपल थिंक दैट, ये लोगों की प्रैक्टिस होती है। सर्दियों में तो ड्राइनेस फील होती है तो कर लेते हैं। मॉइस्चराइजिंग गर्मियों में भी जरूरी है, ये भी बिल्कुल। जब आपकी स्किन
ड्राई होगी तो रिएक्शन में ऑयल ज्यादा बनाएगी। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि अपनी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाएं। बहुत ज्यादा लगाएंगे तो डेफिनेटली वो ऑयली और स्टिकी सा करेगा। लेकिन आपने जब भी फेस वॉश करना है, वजू करना है, जब भी आप शावर ले रहे हैं, तो 2-3 ड्रॉप्स वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर के लेके अपने फेस के ऊपर लगा लें। आपकी स्किन वेल हाइड्रेटेड रहेगी और कंट्रोल्ड, उसके ऊपर पसीना रहेगा, उसके ऊपर ऑयल नहीं आएगा, उसकी And we don't recommend these anti-aging creams जो कि अक्सर हमारी अम्मियां, आंटियां, Over the counter खालाएं जब ये जाती हैं तो उनको काउंटर पे खड़ी बच्चियां बड़ी जबरदस्त मार्केटिंग करती हैं कि आंटी आप तो 18 की लगेंगी, ले लीजिए, और आंटी ले लेती हैं तो वो महंगी क्रीम्स, तो आप रिकमेंड नहीं करेंगे इनको? ओवर द काउंटर नहीं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इनके अंदर स्टेम सेल्स इस तरह की चीजें डली हुई होंगी तो रिजल्ट्स देती हैं। रेटिनॉल बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यूज नहीं करना चाहिए। ये तमाम चीजें रिएक्शंस भी दे सकती हैं। मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट आपको अगर सजेस्ट करे तभी आपने जाना है, और इस तरह की कोई तभी आंटी आप यंग लग सकती हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सनिया, बहुत शुक्रिया इन Thank you so डिटेल much. स्किन रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस